Hello dear students, today sequences and series questions based on summation or you can say questions based on sigma notation. This symbol is sigma. This is the Greek letter and it is known as sigma and it means summation of the terms or summation here read as summation r equal to 1 to n and then here something r square, r cube, 2, 3, 4, 5 and so on. Means anything can be here. So here it is summation and other terms summation r equal to 1 to n. Then you can say what is its value and what is the meaning of this letter. So this letter is known as sigma. It is a Greek letter and it means summation. Read as here this symbol r equal to 1 to n. Here summation r equal to 1 to n. Read as what? Summation r equal to 1 to n. Here fx, f of r, something, etc. See question number first. Find the sum summation r equal to 1 to n r plus 1 into 2r minus 1. So dear student, before starting the solution of any question, first I'll recommend you should go in the description box of this video. It is given a link below the description in the last statement. Click on that link. You will go a formula video. You will get a formula video and then you should revise and practice that formula based on summation, that is last formula of that page of that video, and then start exercise number 2.6, which is totally based on summation or sigma notation. Now see question number first. Find the sum r equal to 1 to n r plus 1 into 2r minus 1. For the solution, see here, since summation r equal to 1 to n r plus 1 into 2r minus 1, first we should multiply these two brackets. Then we get here summation r equal to 1 to n 2r square minus r plus 2r minus 1. Multiplying these two brackets we get here, and simplifying we get summation r equal to 1 to n 2r square plus r minus 1. Now whole bracket contains summation, that is r equal to 1 to n. Now we should write each term separately with sigma notation. So it is equal to twice summation r equal to 1 to n r square plus r equal to 1 to n summation r here and minus summation r equal to 1 to n 1. See once again, here 2 is constant, so we should take out it, that is out of sigma notation, out of summation. So 2 into summation r equal to 1 to n r square plus summation r equal to 1 to n r minus summation r equal to 1 to n 1. Now we have to substitute the values of summation r square, summation r, summation 1. And it is also given in the formula list, which you will get in the description box of the same video, link given in the description. You have to check it. Now this 2 as it is, what is the value of sigma r square? So first मैं ये बताना चाहूँगा कि सिग्मा आर स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर? सिग्मा आर स्क्वायर का मीनिंग ये है, उसका मतलब ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n natural numbers, sum of square of first n natural numbers. For example, 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square and so on up to n square. So here it is r equal to 1 to n. इसका मीनिंग है कि जो वैल्यू ऑफ r है ये 1 to n where n belongs to n, that is n belongs to natural number where n is a natural number. तो यहाँ पर हम लोग 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square and so on up to n square लिख सकते हैं.
तो जो उसका सम होगा ये थ्योरम से प्रूफ करके आया हुआ है, ये नहीं कि ऐसा हमें बाहर करना है। तो अगर थ्योरम का प्रूफ किसी को चाहिए सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड proof of summation r square, summation r cube and so on. So summation r square is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is the formula. ये है इसका formula from here to here. अब यहाँ पर हमें आना है summation r equal to 1 to n. यहाँ पर इसकी मीनिंग है summation r equal to 1 to n. r means sum of natural numbers only. The sum of natural numbers, that is n into n plus 1 upon 2. Means sigma r with r equal to 1 to n is n into n plus 1 upon 2, and summation 1 r equal to 1 to n means 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus n times, so it is minus n. Okay, so 2 multiplied by n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 plus n into n plus 1 upon 2 minus n. ये रहे हमारे सभी टर्म्स, इनके फार्मूलाज और वैल्यूज. नाउ we see that n term present in all the terms. तो यहाँ पर टर्म n जो है ये प्रेजेंट है सभी सेट में. तो क्या करते हैं, टेकिंग n कॉमन फ्रॉम ईच टर्म. तो टेकिंग n कॉमन वी गेट रिमेनिंग टर्म हियर. और देखो यहाँ पर 2 गोज, देखो 6 अपॉन यहाँ पर 2 3 जा 6, इसको कट कर देना है कि 6 गोज बाय 2, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हो, इट इज हियर 3. तो n common, remaining terms n plus 1 into 2n plus 1 here we write here upon 3 plus n plus 1 upon 2 here minus 1. Now LCM of 3 and 2 is 6. After that we multiply by 2 here, multiply by 3 and multiply by 6. So we get here n as it is into 2. अब इसके बाद multiply these two brackets also, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमें मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, प्लस इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 3n प्लस 3, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस 6, बिकॉज एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6. तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से और इसको 6 से, तो सभी की डिनोमिनेटर 6 हो गई, तो यहाँ पर एंटायर अपॉन 6. नाउ n एंड हियर एंटायर अपॉन 6, तो इसको भी बाहर ले सकते हैं, तो n बाई 6 हो गया. अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 इन द ब्रैकेट हियर, सो वी गेट हियर 2 इंटू 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर, 2 इंटू 3n दैट इज 6n, एंड 2 इंटू प्लस 1 दैट इज प्लस 2 प्लस 3n प्लस 3, और यहाँ प्लस 3 माइनस 6 बिकम्स माइनस 3. अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको n बाई 6 एज इट इज, हियर 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3n दैट इज 9n, और यहाँ प्लस 2 माइनस 3 बिकम्स माइनस 1. तो n बाई 6 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 1. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो यहाँ पर समेशन दिया था, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1, तो यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं ये सबको मल्टीप्लाई करके हमें सिग्मा नोटेशंस के फार्मूले यूज करने हैं, और फार्मूला यूज करने के बाद हमें अपने ढंग से अपने वे से इसको सिंप्लीफाई करना है. तो अपने वे से सिंप्लीफाई करके इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में जितना पॉसिबिलिटीज है वहां तक जा करके इसको कंप्लीट करना है. सपोज अगर ये फैक्टराइज होता तो इसको हम आगे प्रोसीड करते, बट इट हैज नो फैक्टर्स, so stop the process and it is your final answer. So this answer n by 6 multiplied by 4n square plus 9n minus 1. Now see question number 2. सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कहीं कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, कहीं आंसर में कहीं क्वेश्चन में, तो सब मैंने करेक्ट कर दिया है. तो यहाँ पर भी जिसके बुक में जो भी मिस्टेक है यहाँ से करेक्ट कर सकता है, यहाँ से मैच करो, और यहाँ पर फुल सोल्यूशन क्वेश्चन भी करेक्ट मैंने दे दिया है और आंसर भी करेक्ट दे दिया है. तो फाइंड समेशन r इक्वल टू 1 टू n 3r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1. तो यहाँ पर देखो कुछ भी यहाँ डबल ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्टली वी शुड एक्सपैंड द समेशन. तो सिंस r equal to 1 to n, summation r equal to 1 to n 3r square minus 2r plus 1 can be expressed as, देखो 3 constant taken out, summation r equal to 1 to n r square minus here 2 constant taken out, summation r equal to 1 to n r plus summation 1 r equal to 1 to n. ये हमारे पास जो इनकी लिमिट है या इनका रेंज जो दिया गया है 1 टू n 1 टू n 1 टू n सभी में है, इसलिए इनको r के टर्म में लिखा गया, और यहाँ पर जो रेंज है r इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 यूज किया गया. अब इसके बाद
सेम हमें प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही यहाँ पर भी यूजिंग द वैल्यूज ऑफ समेशन आर स्क्वायर, समेशन आर एंड समेशन 1 एंड देन टेकिंग कॉमन सिंप्लीफाई एंड अदर वर्क्स. 3 as it is, summation r square is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 minus summation r here n plus 1 upon 2 and this 2 multiply है तो इसको as it is रखेंगे और यहाँ summation 1 equal to plus n. अब क्या करना है देखो, पहला तो यहाँ पर 2 गोइंग बाय 2 और यहाँ पर 3 2 जा 6, ये 2 हो गया यहाँ पर, तो दिस इज 2 और यहाँ पर 2 2 गेट कैंसिल, नो डिनोमिनेटर और ये n जो है ये हो गया कॉमन, तो टेकिंग n आउट then bracket n plus 1 into 2n plus 1 upon 2 minus n plus 1 plus 1. अब इनको क्या करना है देखो, ओनली 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करोगे यहाँ पर भी करोगे, लेकिन इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद, तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 1 विल बी कैंसल्ड, तो ओनली माइनस एन विल बी रिमेनिंग. तो आइए फिर वापस आते हैं यहाँ पर, अब इसका 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ पर होगा, माइनस 2n हो जाएगा, राइट, ये क्या होगा माइनस 2n, यहाँ से ये तो न्यूमरेटर इंटू कर लिया और ये सेम रखना है यहाँ पर, तो n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 अपॉन 2 माइनस n, तो सिर्फ माइनस n बचेगा, तो अगले स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया तो माइनस 2n हो गया, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 2n, एंटायर अपॉन 2 लिखें या 2 को हमने बाहर कर दिया, तो इट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 2n. After that 2n square plus 3n minus 2n, so plus 3n minus 2n becomes what? Plus n, and here it is plus 1. So it is equal to n by 2 into 2n square plus n plus 1. This is the final answer for question number 2. So dear student, if you don't know the formula for the sigma notation or summations, you should follow डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्या करना है देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, सबसे नीचे देखो एक मैंने वहां पर लिंक प्रोवाइड किया है, वो लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे वो सीधे सीधे फार्मूला लिस्ट पर पहुंच जाओगे और सभी फार्मूले उस लिस्ट में दिए हैं और उसमें उनका एक्सप्लेनेशन, मीनिंग्स सब कुछ दिया गया है, तो वहां से सॉल्व करने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. उस फार्मूला लिस्ट को रेफर करते हुए इस सोल्यूशन को इजिली फाइंड किया जा सकता है. Now see question number 3rd. Find summation r equal to 1 to n, 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus r entire upon r. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करना है सोल्यूशन. सिंस समेशन r इक्वल टू 1 to n, 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus r. अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो टर्म है हमारा, ये सिग्मा नोटेशन के अंदर का ये सीक्वेंस देखिए, यहाँ पर देखिए या यहाँ पर देखिए, 1 plus 2 plus 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस आर, तो ये एक सीक्वेंस है जो सम के फॉर्म में दिया गया है, और ये सीक्वेंस को अगर हम लोग केयरफुली देखो, आर यहाँ पर है और आर की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 to n, n इज नेचुरल नंबर, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंस 1 plus 2 plus 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस आर इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2. दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स. इसको हमने आर के ही फॉर्म में लिखा है क्योंकि इसका जो लास्ट टर्म है वो भी आर है, क्योंकि यहाँ पर हमने समेशन यूज नहीं किया है, यहाँ पर 1 plus 2 plus 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस आर, तो राइट द सम ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स आर आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2. दिस इज द फॉर्मूला, और ये सिग्मा आर के ही जैसा है लेकिन उसको हमें आर के फॉर्म में लिखना है. अब इसके बाद आता है हमारा समेशन, क्योंकि ये सिर्फ 1 plus 2 plus 3 ऐसा दिया है, तो इनका सम करने के बाद हमें ये आता है. तो अब जहां पर ये सीक्वेंस दी गई थी वहां पर हम क्या लिखेंगे, ये पूरे टर्म को, तो दिस विल बी समेशन आर इक्वल टू 1 to n, यहां से आ जाइए, फिर से ये टर्म को यहाँ पर लिख लिया, समेशन आर इक्वल टू 1 to n. बहुत ध्यान से समझो, देखो हमने ये स्टेप को क्यों लिखा अलग से, क्योंकि यहाँ पर हमें सबका सम निकालना था इन टर्म्स ऑफ आर, तो हमने यहाँ पर सम फाइंड आउट कर लिया, r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 मिल गया. अगर किसी स्टूडेंट को ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन अप्लाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फार्मूला एंड यूज SN फार्मूला फॉर AP, और यहाँ पर a इज 1 और कॉमन डिफरेंस भी 1, तो SN इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर सम ऑफ दिस सीक्वेंस बट फाइंड इन टर्म्स ऑफ r, तो हमें SR फाइंड करना है, मतलब n की जगह क्या लिखना है r, तो हमें ये टर्म मिल जाएगा. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर गिवन सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की प्लेस पर ये टर्म को लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2, ये जो न्यूमरेटर था,
और यहाँ एंटायर अपॉन आर है, दिस विल बी सेम एंटायर अपॉन आर, और समेशन आर इक्वल टू 1 to n सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा जो न्यू टर्म यहाँ पर बना समेशन आर इक्वल टू 1 to n आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन आर, ये हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। इफ पॉसिबल सिंप्लीफाई, देखो आर गोइंग बाय आर कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग टर्म क्या हुआ आर प्लस 1 अपॉन 2 ओनली। सो दिस विल बी समेशन आर इक्वल टू 1 to n आर प्लस 1 अपॉन 2 मिल गया यहाँ पर। तो r प्लस 1 अपॉन 2 मिला। अब यहाँ पर अपॉन 2 पूरे पार्ट के लिए है, तो चलो उनको 1/2 है करके बाहर ले लेते हैं, ठीक है 1/2 को हमने बाहर ले लिया। अब इसके बाद रिमेनिंग क्या आएगा समेशन r और समेशन 1 विथ r इक्वल टू 1 to n r इक्वल टू 1 to n इन बोथ। तो अब इसके बाद समेशन r इक्वल टू 1 to n r, इसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ सिग्मा नोटेशन का जो फॉर्मूला है हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 मीन सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर आ गया दिस हाफ एज इट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 दैट इज n, ये टर्म आ गया। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है, देखो ये प्लस 2 का मल्टीप्लाई जो यहाँ पर टर्म है हम लोग पहले n करते हैं कॉमन, टेकिंग n कॉमन। अगर हम लोग n को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा देखो n इंटू 1 दैट इज n अपॉन 2, क्योंकि अपॉन 2 पहले से है 10/2। रिमेनिंग टर्म हियर n प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पर हो गया प्लस 1। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 2 दैट इज n प्लस 3 अपॉन 2। तो दिस विल बी n/2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 2 एंड हेंस इट कैन बी रिटन एज n इंटू n प्लस 3 अपॉन 4, क्योंकि डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया। तो n इंटू n प्लस 3 अपॉन 4 दिस इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ये फाइनल आंसर है। स्टूडेंट यहाँ से आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्मा नोटेशन के फार्मूले हैं। मैं एक बार फार्मूला वापस रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट को नोट करना है तो नोट कर सकते हो। देखो पहला क्या करना है समेशन r इक्वल टू 1 to n, ये लिखो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, देखो इस टाइप से ओनली समेशन r इक्वल टू 1 to n ये लिखना है। और ऐसा 4 लाइन्स में लिखो, 4 रोज में लिखना है, ऐसा 4 रोज में लिखो। फर्स्ट में समेशन के आगे लिखो 1, सेकंड में लिखना है r, थर्ड में लिखना है आर स्क्वायर और फोर्थ में लिखना है आर क्यूब। ओके 1 आर स्क्वायर आर क्यूब लिख लिए। समेशन के कितने टाइम्स लिखना है 4 टाइम्स, 4 रोज में डिफरेंट लाइंस में लिखना है सभी को। अब आइए फर्स्ट रो पर समेशन आर इक्वल टू 1 to n 1 इक्वल टू n, इसका मीनिंग होता है कि सम ऑफ 1 n टाइम्स, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स लिखोगे तो मिल जाएगा n। और सेकंड रो में आ जाना है। अभी सेकंड रो में आके क्या करना है यहां पर लिखोगे क्लियरली कि इसको हमें लिखना है क्लियर समेशन r, तो इसको लिखना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यह है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब आता है थर्ड रो में समेशन r स्क्वायर की वैल्यू, तो समेशन r स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसको लिख लेना है हमें n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और लास्ट रो दैट इज फोर्थ रो में लिखना है समेशन r क्यूब के लिए n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 एंटायर पार्ट, पूरे पार्ट को एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में क्लोज करोगे एंड देन होल स्क्वायर, बाहर उसका होल पावर 2, या n स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4 ये लिख सकते हो। तो ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लास्ट के लिए अप्लाई करना है, या दोनों नोट करके रख सकते हो, जहां पर जैसा अप्लीकेबल हो वैसा वहां पर अप्लाई करो। तो ये हम लोगों ने इजिली टिल क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, राइट। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 यहां पर क्या दिया है उसको बहुत ही ध्यान से देखो। फाइंड r इक्वल टू 1 to n मीन्स इसकी जो लिमिट है या रेंज है r इक्वल टू 1 to n, देन ब्रैकेट ध्यान से देखना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस r क्यूब एंटायर अपॉन
r इंटू आर प्लस वन। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले इसके सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। दिस इज द सोल्यूशन सिंस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस आर क्यूब। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यहाँ आर क्यूब दिया है, राइट। और हमने इसको फ्री सीक्वेंस लिखा है, फ्री सीक्वेंसेस, फ्री सीरीज। ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस आर क्यूब, और ये फार्मूला होता है आर इंटू आर प्लस वन अपॉन टू द होल स्क्वायर। मतलब एक तरह से अगर हम लोग कहें इन शॉर्ट, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर समेशन आर क्यूब के लिए ही है, लेकिन इसको हम सिर्फ और सिर्फ n के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। यूज इन टर्म्स ऑफ आर, राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ आर। और इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ आर प्लस वन अपॉन फोर। और इसका जो वर्बल मीनिंग है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, ऐसा यहाँ पर लिख सकते हो फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज फॉर न्यूमरेटर ओनली। सिग्मा का जो यहाँ टर्म दिया है, पार्ट दिया है, उसका ओनली हम लोग अभी न्यूमरेटर का सम फाइंड किए। ये न्यूमरेटर के जो सिंबॉलिक सीक्वेंस है, उसको हम लोगों ने सिग्मा के लिए एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर लिया है इसमें। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर समेशन आर इक्वल टू 1 टू n क्यूब ऑफ 1 प्लस क्यूब ऑफ 2 प्लस क्यूब ऑफ 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस cube of r entire upon r into r plus 1 is equal to summation r equal to 1 to n. Now value of numerator from here we should write r square into square of r plus 1 entire upon 4 and divided by r into r plus 1. तो अब इसको हमें क्या करना है उसको ध्यान से देखो। देखो r square upon r, so one time cancelled, one time remaining. r plus 1 whole square upon r plus 1, so it is one time cancelled, one time remaining. Entire upon 4 as it is यहाँ रख देंगे। तो समेशन r इक्वल टू 1 to n r into r plus 1 upon 4. Now 1 by 4 is constant, so taken out 1 by 4 here. So 1 by 4 constant, so it is equal to 1 upon 4 summation r equal to 1 to n आर स्क्वायर प्लस आर, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर लिख देंगे, क्योंकि हमने 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट था जिसको हमने ले लिया बाहर, टेकन आउट। अब इसके बाद आर इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर प्लस आर, नाउ एक्सपैंड इट, 1 बाई 4 एज इट इज, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर, ये दोनों को नोट किया। सो इट इज इक्वल टू 1 बाई 4 समेशन आर स्क्वायर can be written as n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. देखो समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, ये फार्मूला है, प्लस समेशन r n into n plus 1 upon 2, इट इज फार्मूला फॉर सिग्मा r, और ये सिग्मा r स्क्वायर के यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला हो गया। नाउ n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू यहाँ से भी कॉमन, तो यहाँ से क्योंकि ये 2 इंटू 3 है हम लोग इसको बाहर ले लिए, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन, दैट इज टेकन आउट फ्रॉम द ब्रैकेट। तो 1 बाई 4 तो पहले से ही था, 1 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, जो कि यहाँ से देखो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, इसमें से 2 कॉमन कर लिया तो 3 रिमेनिंग है, और यहाँ ए एंटायर पार्ट कॉमन हुआ तो ओनली 1 रिमेनिंग, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 2n प्लस 1। तो 1 by 4 multiplied by n into n plus 1 upon 2 common, in the bracket 2n plus 1 upon 3 plus 1 bracket closed। अब क्या करना है, देखो 3 1 जा 3, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पर, तो ये हो गया n into n plus 1 upon 4 into 2 that is 8, तो nn plus 1 upon 8 multiplied by 2n plus 1 plus 3 upon 3, so this will be 2n plus 4 upon 3, so it is equal to n इंटू एन प्लस वन, देखो n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन इंटू, अब यहाँ पर देखो 2n प्लस 4, तो यहाँ से है 2 कॉमन, क्या कॉमन करेंगे 2, इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं
तो 2 कॉमन करने के बाद 8 डिवाइड भी हो जाएगा उससे, तो 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 4 3 जा हो गया 12। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 12। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 टू n of 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube and so on plus r cube entire upon r into r plus 1 equals n into n plus 1 into n plus 2 upon 12। तो ये रहा हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और जो कि सभी के सभी क्वेश्चन, ऑल द 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिग्मा नोटेशन, जो कि समेशन पर बेस्ड हैं। तो अभी इन केस जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू, उनको लिंक मिल गया है और अभी जस्ट वो ज्वाइन हुए हैं, तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग से फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हुए कंप्लीट करेंगे, और उनको बीच बीच में फार्मूला लिस्ट भी प्रोवाइड की गई है। और अगर इस एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं और सबसे नीचे देखो एक वहां पर लिंक प्रोवाइड की गई है, तो क्लिक ऑन द लिंक, यू विल गेट फार्मूला, यू विल गो डायरेक्टली ऑन द फार्मूला लिस्ट। तो उस फार्मूला लिस्ट को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, समझो। इन केस कोई भी अगर डाउट आता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड योर सोल्यूशन, आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियोज। तो अगर कोई भी प्रीवियस वीडियो में कहीं पर भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द लेटेस्ट वीडियोज कमेंट सेक्शन, जस्ट मेंशन देयर एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर, और उनके सभी सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियोस में मिलते जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहे हो, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पर सभी डाउट्स मिलते जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और रिमेनिंग चैप्टर्स और रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सोल्यूशन समझने के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।